महापुरुष ने कहा है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस तो झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी, बट हाउ आर यू गोइंग टू गेट देयर? That's where we come in. Welcome to the day 2 of Young Learners Finance Fellowship Program by Finance and Investment Cell, Kirodi Mal College. Finance. It's a term used by many, but understood by only a few. We here work with the motive of making you one of those few. In the last session, we discussed widely the range and vastness of finance. But what do you need to excel in it? Just a guiding hand and a will to learn. And considering that you are here at the day 2 of our fellowship program, you're already at a great start. So I hope that you are up to date with the assignments, or jo nahi hai, we have already extended our deadline. So please complete it as soon as possible, because the internship depends on that assignment. And be sure that be active in the chat box, because we are going to give a shout out to all the people who will be the most active. Now, with that, we can dive deeper into our sessions. Now, I would like to invite our speakers, Kashish Dua and Saksham Dikshit, who would take on the session henceforth. So thank you, Ravi. So how are you guys? सब कैसे हैं? एक बार बता दो चैट बॉक्स में. कल के सेशन सबका एंथुसियाज्म दिख रहा है? Great, सब अच्छा है. So shall I start with the session now? एक बार ही रेडी लिख दो. जब सब रेडी लिखेंगे तब I'll start. Ready. Great. So much of enthusiasm, guys. So great to see all this. Balance sheet, very nice. Great. Ready. So सब ready हैं? So फिर देरी किस बात की है? So Ravi, can we move to the next slide, please? So guys, आज का topic will be very interesting because today we will cover about investing, stock market, shares. अब ये टॉपिक्स तो हम लोग रोज कहीं ना कहीं कभी ना कभी से सुन ही लेते हैं, और हमें तो यही लगता है कि इन्वेस्टिंग इज सिनोनिमस टू स्टॉक मार्केट. लगता ही नहीं लगता? ये बता दो. ये तो सुना ही है सबने. एट वंडर, यस यही लगता है, बट ऐसा नहीं है. और यही बताने के लिए आज हम आपके पास आए हैं कि फाइनेंस में they have hold very different position of what you have. So let's start with an example. Suppose there is a person one. She has recently graduated from the college and got placed. So जैसे graduation complete हुई, she wants to invest. So what she did is she started investing ₹1,000 per month at the rate of 12% of interest. After 30 years of investing regularly per month, she got 31 lakh. But now there is a person too. जब उसने स्टार्ट किया था तो उसे नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है. तो बट अगेन ही इन्वेस्ट एक जब रिटायरमेंट आने वाली होगी तो इन 10 years of span he invested ₹12,000 per month rate of 12% of interest and he got 27 lakhs. तो अब तो आप लोग सोचोगे कि पर्सन 1 को 31 lakhs मिल गए 30 years के अंदर और पर्सन 2 को 27 lakhs मिले 10 years के अंदर, तो हम तो 10 साल इन्वेस्ट करेंगे. नो गाइज, look at the amount invested. The person 1 invested 3.6 lakh and the person 2 invested 14.4 lakhs. Can you see the difference? क्या किसी को इस डिफरेंस से मतलब समझ आ पा रहा है? क्या मतलब है अर्शिया? If you are able to understand it. Counting inflation, person 2 got more. Okay, time की value, capital invested is more, right? ROI, right? Yes, more return. So yes. So what is investing? So what we can derive from here, the main factor in investing is disciplined investing and consistency over a period of time. So for investing, for getting better returns and for creating a wealth more, you need to start early. And what here comes in fact is compounding effect. Is clear? Great. Can we have the next slide, please, Ravi? So अब तो कहोगे यार इन्होंने कह दिया इन्वेस्टिंग कर लो, बट और हम ये भी बता दें कि स्टॉक मार्केट में मत करो, वो तो सिनोनिमस है. स्टॉक मार्केट मतलब बहुत सारे वेन्यूज अवेलेबल हैं. तो सो नाउ इन दिस स्लाइड वी हैव डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स अवेलेबल टू अस. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इज डेट के बारे में सबने बिजनेस स्टडीज की बुक में पढ़ा है? बता दो एक बारी, डेट क्या होता है? एक लाइन में डेट के बारे में बता दो. समझे? डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ओके. बोरोड फंड्स, ग्रेट. Term borrowings, okay. Loan, rate. So debt. So what did we study in business studies? That whenever
wants to raise funds, sometimes they raise it in the form of debt. So as an investor, suppose अगर मुझे debt में invest करती हूँ, so what I have in my plate is that I get a fixed return over a period of time, and I have a surety of getting my payment returned to me. So debt is a safer avenues, and you invest, right? Next is equity shares. अब इक्विटी शेयर्स तो शेयर स्टॉक मार्केट सबने सुना है. सो समटाइम्स इंस्टेड ऑफ रेजिंग डेट, company wants to raise money in the form of equity shares, where they sell a part of their company to the shareholders, and when you purchase this, you become a shareholder of that company. So but what happens in equity shares is that equity shares is more risky than that debt. Next is REIT, which is Real Estate Investment Trust. So REIT अभी भी न्यूज में थी, सब लोगों ने इसके बारे में सुना है. REIT किसने सुना है यहाँ पे? यस, क्या सुना REIT की न्यूज के बारे में आप लोगों ने? सो REIT का पर्टिकुलर न्यूज याद भी नहीं, तो ये तो सबने ही सुना है कि हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स की सपोज अब रिसेंटली एरियाज बिल्ड हो रहे हैं नोएडा एंड गुरुग्राम साइड में. सो जैसी बिल्डिंग्स बिल्ड होना स्टार्ट करती है, वो इन्वेस्टर मनी, क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमें सस्ते में मिल जाएगा, एंड आते आते वी विल, जब वो अच्छे से बन जाएगा तो हमें उसका रिटर्न अच्छे से मिलेगा. सो ऑन सिमिलर लाइंस वर्क्स REIT. In REIT, we invest in real estate, which is building and will be constructed very soon, right? Okay, next is gold. गोल्ड तो सबने ही सुना है, सबके घर में बात होती है, यही हम सुनते हैं आजकल, यार गोल्ड की वैल्यू कितनी हाई जा रही है. So gold again is a very common form of investment that we Indians especially prefer. Great, सबने सुना. So can we have the next slide, please? The stock market. अब आपने ये भी बता दिया स्टॉक मार्केट क्या है. स्टॉक मार्केट, नो, here we are going to talk about what are the different avenues you have that you can invest in stock market. First is PMS, which is portfolio management service. What happens in PMS is when you invest, your investment is managed by qualified wealth managers. Like अगर हमने कहीं भी पैसा लगाया, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कभी कभी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल्स कि वी नीड कि हम पूरा रिसर्च करें कि हमें इस एरिया में ज्यादा लगाना है या इस कंपनी में ऐसे करना है. So where comes the role of fund managers, and when you invest in PMS, your funds are being managed by qualified wealth managers, and they're backed by research equity team, right? Next is MF, mutual funds. Now mutual funds तो सबने सुना है, मतलब बहुत कॉमन है, बट बताती हूँ म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली है क्या. सो इसके नाम है म्यूचुअल ऑफ फंड्स. तो क्या म्यूचुअल ऑफ फंड्स के नेम से सब कुछ लोग बता पाते हैं कि क्या होगा म्यूचुअल फंड्स? कुछ जज कर पा रहे हो आप लोग? इसके नेम में इसका मतलब एक्चुअली म्यूचुअल मीन्स शेयरिंग. यस शोभित, आगे बाकी सब बताओ. गाइस इंटरैक्ट इन द चैट बॉक्स, बताओ. Collective investments in many people to organization. Yes, combination of stocks. Not combination of stocks exactly, Mamina. Yes, turn through a broker. Usually multiple investors come together and invest. Right. Very good. You guys have fair idea. That's very great. So what happens in mutual funds is, so because as जब हम start करते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि every month we invest 10,000 या 50,000 कि हम हर महीने invest कर सके. So what happens in mutual funds and investors collectively manage a pool of investment from different people. Your investments are managed by people, and they are pooled in by many people together. Okay, right. So next is FDI. Now what is FDI? Just foreign direct investments. So what happens under FDI is, suppose I sitting in India wants to invest in a company in foreign. तो अगर मुझे फॉरेन की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सो आई विल गो फॉर FDI. When I invest through FDI, invest in a company, because when I was searching, तो मुझे अगर उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉरेन में रहकर ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो I invest in through FDI. I hope it's clear, guys. So Ravi, can I have the next slide? Yes. So from here, Sakshi will take over. हेलो गाइस, चलो पहले तो जल्दी से ना एक क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से एकदम फुर्ती से. अब तक जो भी कशिश ने बताया, आपको क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग? बहुत जल्दी से तुरंत से चैट बॉक्स एकदम भर दो आंसर से. ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? टाइम डिपेंडेंट. ओके, ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म. राइट. ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म. कोई इन्वेस्टिंग भी बोल दो भाई, माई हार्ट इज सिंकिंग. प्लीज कोई इन्वेस्टिंग बोल दो. इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म. राइट, एग्जैक्टली. सो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है एंड इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म. नाउ लेट्स गेट ऑन व्हाट आर एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बस कर दो.
आराम से सुन लो। म्यूचुअल फंड्स होते हैं जब, अगर जैसे कोई एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एमआरएफ। एमआरएफ ऑलवेज लाइक ट्रेड्स अबव ₹1,00,000 पर शेयर। इतना एक्सपेंसिव स्टॉक है, बाय कर लोगे क्या? मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, इवन ओसी मेंबर्स भी नहीं कर सकते बाय एमआरएफ को, एक स्टॉक को भी। तो क्या करेंगे? बट चाहिए यार, अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, अच्छा कुछ अच्छा दे रहा है, चाहिए हमको। ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नो नो, अब बिट रॉन्ग, देखते हैं चलो। तो ऐसा करते हैं, मैं, मैत्री, जयरेश, नंदलाल, जयरेश, जयरेश तो है हो ही गया, एंड शुभम, बहुत सारे लोग, हम लोग 10 12 20 लोग मिलके, वी पूल आवर रिसोर्सेज टुगेदर। 10,000 मैं डालता हूँ, 10,000 आप डालते हो, ऐसे ऐसे करके वी मेक इट 1 लाख। देन हम फिर जाते हैं फंड मैनेजर पे एंड वे लाइक, भैया ये लो हमारे पैसे, अब हमको हमारे वाला स्टॉक खरीद दो प्लीज। एंड दैट्स हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। इन म्यूचुअल फंड्स जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो म्यूचुअल फंड जिनका रिलीज होता है, वो अपना एक फंड मैनेजर रखते हैं, एंड फंड मैनेजर मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम द डिफरेंट पूल्स ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर फंड, ओनिंग दैट पर्टिकुलर शेयर। अब फंड मैनेजर ये तो सब चीज़ें कर लेता है, बट फिर आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करोगे? कोई अब मुझे बताओगे कोई कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करो? आपको थोड़ा हो सकता है वो अपना भी तो कमीशन लेगा फंड मैनेजर। व्हाई वुड यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड नॉट डील विद इट? No, less risk won't be an answer, because at the end of the day, you're still trading in equity. Exactly, first point, not enough knowledge yourself. Diversification can be achieved yourself also. Lack of knowledge, yeah, lack of knowledge and the dearth of time. आप पे टाइम नहीं है, you're like मेरे पे टाइम नहीं है, अगर मेरे को 2-3% कम भी मिल जाता है रिटर्न, आई स्टिल वांट समवन एल्स कि मेरे लिए कोई मेरी मनी से कोई और पैसे बनाए एंड मुझे वो दे। तो दैट्स व्हाट अ फंड मैनेजर डज, ओके। अब म्यूचुअल फंड्स की तीन और चीज़ें आती हैं, तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होती हैं म्यूचुअल फंड्स की, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। क्या होता है, लाइक दीज आर वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लार्ज कैप इज जब जो टॉप 100 फर्म्स होती हैं, द लार्जेस्ट वंस, जब वो अपने शेयर्स पुट फॉरवर्ड करती हैं एंड उनका एक म्यूचुअल फंड तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड द लार्ज फंड, लार्ज कैप। देन कम्स मीडियम कैप एंड देन कम्स आपका स्मॉल कैप। मीडियम कैप में 101 से लेकर 250th फर्म होती है, एंड स्मॉल कैप में 250 फर्म्स एंड अबव। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, इसमें हो सकता है कुछ लोग फंस जाएं। विच कैप विल हैव द हाईएस्ट ग्रोथ रेट? विल इट बी द लार्ज कैप और विल इट बी द स्मॉल कैप? Small, 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 small. Why? Why? Exactly. Large have already achieved maturity. अब आप एक कोका कोला जैसी कंपनी से तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो 20% का आपको CAGR दे, आपको ग्रोथ रेट दे 20% का। कोका कोला, अ कंपनी लाइक कोका कोला एंड पेप्सी, दे आर ऑलरेडी इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ एवरी कंट्री, इन एवरी स्ट्रीट। अब और कहाँ ग्रो करेंगे? चांद पे? वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत सिंपली, स्मॉल कैप ज़्यादा ग्रोथ देती है, बट कीपिंग इन माइंड कि स्मॉल कैप ज़्यादा रिस्की भी होती है। तो यहाँ से जाके ये मत इन्वेस्ट करके बोलना कि FIC ने बोला था स्मॉल कैप में पैसे डूब गए। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ओके, सो रावी, कैन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? अब आते हैं SIPs पे। व्हाट आर SIPs? लाइक एज द नेम सजेस्ट, SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। क्या होता है इससे? वन वर्ड आंसर, SIP से सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होता है आप कंसिस्टेंट रहते हो, डिसिप्लिन बन जाता है आपके अंदर। SIP में बहुत सिंपली आप एक पर्टिकुलर सम एक फिक्स टाइम इंटरवल पे जमा करते रहते हो, एंड इससे वैसे नॉट नेसेसरली मंथली, आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो चाहो वैसे हिसाब से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इवन कुछ फंड 15 डेज वाला भी निकालने लग गए हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इससे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपके ऊपर ना फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आता कि मेरे को इतना सम इन्वेस्ट करना है। आप लाइक आप कितनी भी सैलरी अर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो, स्टिल इन्वेस्ट थोड़ा सा सम, 500 700, कोई लिमिट नहीं होती, वो सब इन्वेस्ट करोगे। एंड अगर आपने 1 मंथ में 500 इन्वेस्ट किया, तो आई डोंट थिंक वो किसी पे भी एक बहुत ज़्यादा तेज बर्डन लाता है। एंड दैट इज़ वॉट SIP डज। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कशिश को एक ड्रेस बाय करनी है 10,000 रुपीज़ की, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस भाई, हाँ, पर मंथली इसके पास 800 रुपये ही हैं जो ये बचाती है। 800 रुपये अगर साल भर के लिए बचा, तभी 9600 बैठेंगे। 9600 में इसकी ड्रेस नहीं आएगी, मम्मी ने मना कर दिया कि 400 रुपये नहीं दूंगी और। ओके, अब क्या फाइनल में क्या कर सकते हो आप? बहुत सिंपल, अगर ये SIP के थ्रू अपने पैसे इन्वेस्ट करती है, मान लेते हैं SIP पे एक जो गुड रिटर्न होता है एक म्यूचुअल फंड के हिसाब से, जो बॉर्डर लाइन रिटर्न हम मानते हैं म्यूचुअल फंड्स के कि वो बीट करते हैं इंडेक्स को, इन सबको अगर हम माने एक अच्छा म्यूचुअल फंड माने, तो 12% के हिसाब से अगर हम उसको एस्टिमेट करें, 12% इंटरेस्ट अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड दे रहा है, 12% रिटर्न आपको कोई म्यूचुअल फंड दे रहा है, और आपने 800 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करें,
1 साल बाद आपके पास इतनी मनी हो जाएगी कि आप ये ड्रेस ले सको, एंड जब आप ये दूसरे साल में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतनी मनी हो जाएगी कि एक्चुअली आप 2 और ड्रेस ले सको। इन्फ्लेशन को हमने बीट कर दिया है। इन्फ्लेशन ड्रेस में 1 साल में हमने माना है इन्फ्लेशन कांस्टेंट आ रहा है, 1 साल का इन्फ्लेशन का रेट 5.5 से 6% होता है, तभी हमने उसको बीट करने के लिए माना, मार्केट इंडेक्स 9% के हिसाब से फ्लोट कर रहा है। तो अगर हम उसके बारे में बात करें, रावी कैन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेरिवेटिव्स, या डेरिवेटिव किसको पता है? पता है किसको डेरिवेटिव्स? मैथ्स वाला नहीं यार, मेरे को बहुत डर लगता है उससे, मैथ्स वाला नहीं, बट नॉर्मल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? यस यस यस, मी, तुम लोग डेरिवेटिव हो क्या? क्या होते हैं डेरिवेटिव? व्हाट आर डेरिवेटिव्स गाइस? कम ऑन जल्दी जल्दी से आंसर करो। फ्यूचर्स ऑप्शन वैसे 4 टाइप के होते हैं डेरिवेटिव्स, बट हाँ मोस्टली ट्रेडेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फॉरवर्ड आल्सो, राइट? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। डेरिवेटिव एक बहुत सिंपल चीज़ है, एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। ये तो यहीं से देख के बोल दिया तुम लोगों ने, हैं? वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, बढ़िया बढ़िया। फ्यूचर्स और ऑप्शन की बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वी नो कि वो पर्टिकुलर स्टॉक है ना, वो फ्यूचर में थोड़ा चेंज करने वाला है। नॉट राइट नाउ, इट्स वेरी स्टैग्नेंट राइट नाउ, बट फ्यूचर में इट्स गोइंग टू चेंज। बट हम चाहते हैं यार अभी मेरे पे पैसा थोड़ा सा है, फ्यूचर में होगा नहीं होगा नहीं पता, ठीक है? या अभी मेरे पे पैसा नहीं है, फ्यूचर में होगा या हो सकता है हो जाए, ठीक है? तो उस टाइम पे व्हाट यू डू, यू टेक अ फ्यूचर। जब उसकी मेच्योरिटी आती है, जब उसकी मेच्योरिटी आती है, तब आप आज वाले प्राइस पे उसको तब बाय कर सकते हो। देन इट्स गैम्बलिंग। नो, इट्स नॉट गैम्बलिंग, बिकॉज फ्यूचर्स का एक पर्टिकुलर स्टडी होती है। ऐसे एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, बट इट इज नॉट, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक स्टडी इन्वॉल्व। बट या, nothing is 100% like surety, nothing has 100% surety in stock market, because there are many forces in play, the market demand, market supply, even the government, the lobbying and stuff, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर सब कुछ आपको आपके फेवर में है, सब कुछ सही चल रहा है, फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज दिस, देन अगर आप एक फ्यूचर ले दो तो आप उसको एक, हम टेक्निकल और फंडामेंटल भी कवर करेंगे अभी, तो आप उसको फ्यूचर वाले जो आपकी अमाउंट होने वाली है उसके लिए आप अभी वाला अमाउंट के लिए बुक करा सकते हो, और फिर आप फ्यूचर में उसको ले सकते हो। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। बट फ्यूचर की ना एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिटेशन जो दूसरा वाला पार्ट कवर करता है। किसी को पता है वो लिमिटेशन क्या है? किसी को भी नहीं पता? नहीं पता, कोई नहीं, चलो। क्लियरिंग पीरियड, ओके, हाँ चलो तो बताते हैं। जब फ्यूचर में अनसर्टेन तो डेफिनेटली होता है, दोनों होते हैं अनसर्टेन, एवरीथिंग इज अनसर्टेन, ओके, एवरीथिंग इज व्हेन ऑन द प्राइस मेकिंग इट राइस फ्यूचर्स। तो चलो बताते हैं क्या होता है फ्यूचर वाले में। जब एक ड्यू डेट आती है ना, आपकी डेट ऑफ मेच्योरिटी आती है, यू हैव टू बाय इट और यू हैव टू सेल इट। आपको कोई चॉइस नहीं मिलती कि नहीं यार अब तो गंदा लग, अब तो अच्छा नहीं लग रहा, प्राइस नहीं बढ़ रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं बेच रहा या मैं नहीं खरीद रहा, नहीं, यू हैव टू सेल इट। अब ये चीज़ बहुत सिंपली जो इसका दूसरा ऑप्शन है ना वो बीट कर देता है, दैट इज ऑप्शंस। अब ऑप्शन का सिनोनिम क्या होता है? ऑप्शन का सिनोनिम इज चॉइस, ठीक है? बोलते हैं ना ऑप्शंस रखो अपने, तो बस ऑप्शन का सिनोनिम इज चॉइस। ऑप्शंस में आपके पास एंड में चॉइस होती है लेने की या ना लेने की। चलो अब दूसरे पे जाते हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी से आगे जाते हैं। रावी कैन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सब लोग बात कर रहे थे ना फंडामेंटल टेक्निकल, चलो फंडामेंटल पे ही आते हैं। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस किस चीज़ को बोलते हैं? जब आप कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर्स और रेशोज इन सबको एनालाइज करके, मेजरली उनकी रिपोर्ट्स जो भी वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो भी वो हर प्लेटफॉर्म पे अपने डाल रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ एसेस करके, उनके रेशोज एसेस करके, और उनके फाइनेंशियल फैक्टर्स को एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइजेशन में बिठा के जब कंपनी को एनालाइज करते हो, दैट इज नोन एज फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट डज इट डील विद? एग्जैक्टली, पीयर कंपैरिजन, इंडस्ट्री कंपैरिजन, क्रॉस इंडस्ट्री कंपैरिजन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाउ व्हाट डज फंडामेंटल एनालिसिस डील विद? अब सब लोग एकदम पीपीटी पे देखो, ठीक है? द फर्स्ट थिंग वी सी इज सेल्स ग्रोथ, द सेकंड थिंग वी सी इज प्रॉफिट ग्रोथ, और दोनों को साथ में दोनों की बात करते हैं, ओके? दानिया सेज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? बट अगर आप शॉर्ट टर्म में करो तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके टेक्निकल से पैसे डूबने बच जाएंगे। चलो बात करते हैं अब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। व्हाट डू दे टेल अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक? इन दिस स्टॉक, इफ यू जूम इट, और इफ यू कैन जूम इट, इफ यू कैन सी इट, यू कैन क्लियरली सी कि जो हमने 5 years बेसिस दिए हैं, 3 years बेसिस दिए हैं, एंड वाई दिया है, ओके? In both the cases of the profit as well as the sales growth, it is growing. The 5 year has been lower, the 3 year has been more than that, and YOY has been the biggest. What does it tell you? And I want you people to assess this and tell me
ये क्या बता रहा है आपको कि प्रॉफिट पिछले साल से बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ 5 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा बढ़ रही है और अब लास्ट ईयर से बहुत बढ़ रही है, ग्रोथ कर रहा है। कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही है, ज़्यादा सेल कर रही है, तभी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपली यही है ये। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। यही बताते हैं दोनों चीज़ें। अब चलते हैं आरओई पे। वैल्यूएशन मैटर, एग्जैक्टली, विल कवर इट इन द अपकमिंग पार्ट। आरओई पे चलते हैं। आरओई इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, अब ये बताओ कि कैपिटल किन दो चीज़ों से बनता है? अगर आप कैपिटल की बात करो, किन दो चीज़ों से बनता है कैपिटल? इक्विटी डेट, इक्विटी डेट, इक्विटी डेट, राइट, एकदम राइट। तो हम आरओई और आरओसी की साथ में बात करते हैं। ओके, आरओई इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड आरओसी इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट डज द आरओसी टेल यू एंड व्हाट डज द आरओई टेल यू? अगर आरओई पे जाएं, आरओई में भी इंक्रीज कर रहा है ना, 5 ईयर्स से 3 ईयर्स से, वाई ओ वाई इट्स इंक्रीजिंग। यानी आपने जो, अगर आप अपने आपको फर्दर लिक्विडेट कर रहे हो एज अ फर्म, जो कि मे बी ये फर्म कर रही है, ठीक है, तो जो आपको अगर आप हमको फर्दर लिक्विडेट कर रहे हो, मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन इन दिस सेंस इज कि अगर आप अपने फर्दर इक्विटी शेयर्स लॉन्च कर रहे हो मार्केट में और एसपीआई, अगर आप उसको लॉन्च कर रहे हो, तो उसमें आपको जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आपको जो फंड्स आ रहे हैं वहां से अटेन हो रहे हैं, उन फंड्स को आप इतने एफिशिएंट यूज पे लगा रहे हो कि आपका जो रिटर्न है वो इंक्रीज कर रहा है। अब वापस आ जाओ एंड आरओई, प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ को साथ में देखो। एंड अब व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट फोकस ऑन इट। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है। ओके, दिस मीन्स कि इक्विटेबल जो इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन करा है, विच मीन्स कि इन्होंने जो अपना लिक्विडेशन करा है फर्दर मोर फंड्स अटेन करने के लिए, इन्होंने, इनको वहां से फंड्स आ गए, उन फंड से इन्होंने सेल्स करी, अपने सेल्स को इंप्रूव करा एंड सेल्स इंक्रीज हो गई। उस सेल इंक्रीज होने की वजह से इनका प्रॉफिट ग्रोथ राइज हो गई। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द कंपनी? कंपनी एफिशिएंट हो रही है, नॉट नेसेसरली कि एफिशिएंट है। अभी एक दो और रेशियोज इनको मैसेज करेंगे, बट कंपनी इस सेंस में अपने इक्विटी को ढंग के अच्छी जगह लगाने के लिए एफिशिएंट हो रही है बहुत ज़्यादा। लेट्स गो ऑन विद आरओसीई। आरओसी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट आरओसी असेस करने से पहले आई हैव टू टेल यू वन मोर पॉइंट। जस्ट कम डाउन इन द बिलो कॉलम एंड यू विल सी डेट टू इक्विटी इज जीरो। दैट मीन्स द कंपनी हैज जीरो डेट। अब बताओ ये अच्छी बात है बुरी बात है? कंपनी के पास डेट नहीं है और डिक्रीजिंग डेट, दैट कंपनी हैज नो डेट। अच्छी बात है। और लोग बताओ, और लोग बताओ, ज़्यादा तो इसको इंटरेक्टिव रखो यार। अच्छी 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 अच्छी। बैड, प्रभात सेड बैड, हैज नो फिक्स इंटरेस्ट। तो जो लोग बैड कह रहे हैं, व्हाई इट्स बैड, व्हाई इट्स बैड, बताओ बताओ। बैड वाले जल्दी से बताओ। फाइनेंशियल लेवरेज और और बैड वाले, नो एडवांटेज ऑफ टैक्स रिडक्शन। सबसे लेमन लैंग्वेज में, नो एडवांटेज ऑफ टैक्स रिडक्शन ऑन डेट। ओके, ये आपका एकदम एकदम करेक्ट पॉइंट है, नो एडवांटेज ऑफ टैक्स रिडक्शन। बट अब ये बताओ, सिंस डेट इज नॉट देयर, तो जो बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व है विद डेट, क्या वो है? अब वो भी नहीं है ना। बताओ बताओ। 2:1 रेशो इज फेवरेबल वेन एवर द डेट एग्जिस्ट। ओके, एंड 2:1 रेशो के लिए अगर आपको 2:1 रेशो रखना है ना, तो आपका जो डेट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, उससे ज़्यादा आपके पास जो कैश है बिजनेस में, वो होना चाहिए। रिस्क आपका उसकी वजह से खत्म हो जाएगा, सिंस आप पे अभी डेट है ही नहीं भाई। देखो बहुत सिंपली, जब डेट आता है ना, डेट दो तरीके का होता है, फाइनेंशियल डेट और बैंक्स डेट। जो बैंक आपको मॉर्गेज करता है, बैंक जो आपको लोन देता है, दो तरीके का होता है। व्हाट हैपेंस, जब भी, एक बहुत सिंपल सिनेरियो क्रिएट करते हैं, इफ समवन गोज बैंकरप्ट, सबसे पहले बैंकरप्ट हो गई कंपनी, पहले किसको दिया जाता है? इज इट जो क्रेडिटर्स हैं वो, और इज इट द इक्विटी होल्डर्स? क्रेडिटर्स पहले, क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स, राइट, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स। अब आपके क्रेडिटर्स ही नहीं है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे या नहीं करोगे कि भाई क्रेडिटर्स है ही नहीं, सबसे पहले मुझे ही मिलेगा, अगर मैं इक्विटी में होल्ड करता हूँ तो मुझे ही मिलेगा। एग्जैक्टली, द क्रेडिटर्स डू नॉट हैव अ से। अगर आपकी कंपनी खराब करती है, दे डू नॉट हैव अ से। वो किसी भी बात पे आपसे पैसा वापस नहीं मंगा सकता, बिकॉज उनके आपके पास कोई पैसा है ही नहीं, वेरी सिंपली। चलो, इनफ टॉक्स अबाउट आरओसी इन डेट टू इक्विटी, नाउ लेट्स गो ऑन विद प्राइस टू कैश फ्लो। प्राइस टू कैश फ्लो क्या होता है? प्राइस हियर, इट emphasizes on price of your particular stock that you have bought, price of one share. Okay, प्राइस टू कैश फ्लो टेल्स यू कि आपको जो कैश फ्लो आ रहा है, कितनी पीरियड्स में, कितनी बार में वो आपके जो, जिस प्राइस पे आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया है, उसको कवर अप कर सकता है। ये आपको ये बताता है कि वो जो पर्टिकुलर प्राइस में ट्रेड हो रहा है, वो जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है पर्टिकुलर प्राइस में, कितनी बार वो कैश फ्लो को घूमना पड़ेगा
और बार बार उसको उस पीरियड में, उन अलग अलग पीरियड्स में मूव ऑन करना पड़ेगा कि जो वो उस प्राइस को रिटर्न कर सके आपको. इट टेल्स यू दिस. गोइंग फॉरवर्ड, आईसीआर. आईसीआर आप सब ने 12th में पढ़ा होगा, जिसके पास भी कॉमर्स थी. टीएस ग्रेवाल में आईसीआर का बहुत बहुत बड़ा सा पार्ट भी आता है, अब शायद छोटा हो गया हो, बट आईसीआर सबने पढ़ा होगा. दिस आईसीआर ऑफ 337, you have studied this before. Exactly how efficiently it covers interest payment. Okay, I'll explain it. ICR is आपका इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट्स कितनी है अपॉन आपकी अर्निंग वगैरह कितनी हो रही है. ICR टेल्स यू कि कितनी बार वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट आप कवर कर सकते हो अपनी अर्निंग से. तो इफ वी कंसिडर इंटरेस्ट टू बी 1, दिस कंपनी कैन कवर इट्स इंटरेस्ट 337.37 times. Is it good or is it bad? Tell me. Actually, we already have an answer. Higher the better. Good. Right. Yeah. ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये. हाँ जी. तो now let's go on to CFO by PAT. Now CFO is cash flow from operations and PAT is profit after tax. Okay. Make a note here. CFO by PAT tells you कि आपके जो बिजनेस में आपने टोटल अक्रूएबल इनकम दिखाई है ना. एवरीवन नोज अक्रूएबल, अक्रू बेसिस और अक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस. एवरीवन नोज इट, राइट? ओके. सो आपने जो अक्रूएबल इनकम दिखाई है कि आपने जो डाला है कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है. इट देयर आर केसेस इट माइट हैपन कि 31st को आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, बट आपकी वो जो अर्निंग है वो इसी साल की है, बट एक्चुअली गोइंग टू रिसीव इट ऑन 1st of April और समडे आफ्टर दैट, लाइक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, समडे लेटर इन द फ्यूचर आप उसको रिसीव करने वाले हो. इट माइट हैपन. तो एक्चुअली आपके अक्रूड बेसिस के हिसाब से इट विल स्टिल कम आपके पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में. अगर आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो चीज़ आ रही है, यू टेल मी व्हाट इज गुड. कि हमें अर्निंग्स तो बहुत कर रहे हैं बट हमारे पास कैश नहीं है, बट हम अर्निंग्स तो ओके कर रहे हैं पर हमारे पास उतना ही कैश है. व्हाट इज गुड? डू यू वांट टू हैव कैश इन योर हैंड्स, लाइक लिक्विड एसेट्स डू यू वांट टू हैव इन योर हैंड्स? एग्जैक्टली. एंड दैट इज हाउ CFO by PAT हेल्प्स. CFO by PAT टेल्स यू कि जितना आपके एक्चुअल में डेटर्स हैं, बहुत सिंपली अगर हम डेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जितने आपके एक्चुअल में डेटर्स हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं. A CFO by PAT ratio of 0.94 tells you कि 94% of the money that other people जो इनको देना चाहते हैं, जो इनके डेटर्स हैं, वो इनको दे रहे हैं. इसका मतलब ये है कि बहुत सिंपली अगर 100 लोग ऐसे हैं जिनसे इस कंपनी को 1-1 रुपया लेना है, उनमें से 94 दे रहे हैं और 6 डिफॉल्ट कर रहे हैं. A CFO by PAT which is above 0.7 is deemed good because आजकल इंडस्ट्री में बहुत लोग नीरव मोदी बने हुए हैं, बहुत लोग विजय माल्या बने हुए हैं. ठीक है, आप में से कोई मत बनना प्लीज. हाँ. तो ये जो 0.94 का रेशियो है, ये आपको बहुत अच्छा चीज़ें बताता है. एंड एक और आई थिंक किस लोगों ने पकड़ भी लिया होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज. बताओ तो किसी को पता है नहीं पता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. सब लोग यही बोलते रहते हैं एक रेशियो के बारे में. पता है किसी को? एग्जैक्टली, PE. EPS is not a ratio, it's earning per share. Exactly. PE ratio. PE ratio क्या बताता है आपको? PE ratio is price upon earning per share. What does it tell you? It tells you कि जो आपका particular price है जिस पे stock trade हो रहा है, let's assume it to be 500. No, assume it to be 100. Okay. And आपका earning per share है, let's assume it to be lower, more undervalued. Not necessary. Not necessary. Not necessary. ऐसा नहीं है कि अगर पी लोअर है तो वो अंडरवैल्यूड है. अब बात करते हैं, फिर बताएंगे, फिर बताते हैं. पी रेशो आपको ये बताता है कि कितनी बार जो कंपनी की अर्निंग्स है, वो फ्लोट करेंगी ताकि आपका जो पर्टिकुलर प्राइस जिस पे आपने स्टॉक बाय किया है वो आपको वापस मिल जाए. अगर मैंने एक स्टॉक बाय किया है 100 रुपये में, कंपनी का EPS है 4, तो मेरे कंपनी को 4 साल लगेंगे मेरे को वो पैसा वापस करने में. दैट्स व्हाट EPS मीन्स. बहुत सिंपली सब लोगों को ये लगेगा कि अगर आपका EPS कम है, ऐसा अगर किसी कंपनी का EPS 1 है तो मतलब तो 1 साल पैसा लौटा रही है यार, क्या बढ़िया कंपनी है, उसमें ही करो. जिसका EPS ज़्यादा है उसमें मत करो. लेट मी टेल यू, टाटा का PE रेशो अभी 100 के ऊपर चल रहा है. टाटा की कंपनी का PE रेशो, आई रिपीट, जो आपका अर्निंग पर शेयर है, पर शेयर आपकी जो अर्निंग आ रही है, ठीक है, उसको मानते हैं 25 कि आप पर शेयर कंपनी 25 रुपये कमा रही है. ओके, ये मानते हैं. फिर हम मानते हैं कि जो प्राइस जो उस पर ट्रेड हो रहा है दैट इज 100. PE ratio is price upon earning per share. That gives you 4.
अगर 4 पे ट्रेड हो, अगर 4 आपका पी रेशियो है कि उसका मतलब ये होता है कि इट विल टेक कंपनी 4 years टू रिटर्न टू यू जिस अमाउंट पे आपने उसके स्टॉक बाय किया था, आपने उसके शेयर्स बाय किए थे, उस चीज़ को लौटाने के लिए कंपनी को आपको 4 साल लगेंगे। कुछ पी रेशो बहुत केसेस में, इवन मेजॉरिटी केसेस में, लोअर वन इज ऑलवेज प्रेफर्ड, बट यू मस्ट ऑलवेज चेक कि उस कंपनी का जो उसके बारे में जो न्यूज़ चल रही है ना वो कैसी है। इट माइट हैपन कंपनी बहुत स्ट्रांग है बट उसका पीई रेशो कम है, एंड इवन आई एम टेलिंग दैट लोअर इज बेटर, येस इन सम केसेस इट इज बेटर बट नॉट इन ऑल द केसेस। तो अब 2 मिनट रुक जाओ, चैट बॉक्स 1 मिनट रोक लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, 1 मिनट रोक लो, 1 मिनट रोक लो। इट माइट हैपन कि कंपनी का you can never see P ratio less than 1, you can never see P ratio, no, you can see a P ratio less than 1 but you can never see it negative। अगर आपकी कोई P ratio मिलता है किसी कंपनी का नेगेटिव, उस कंपनी को ना अपने दिमाग से डिलीट कर देना हमेशा के लिए। ओके अब बहुत सिंपली, अब सुनो सुनो सब सुनो, पीई रेशो अगर आपका कम है इसका फायदा होता है द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, बट सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि पी कम है ज़्यादा है। इट माइट हैपन कि ऐसी कंपनीज रही हैं जिनका पी रेशो कम है, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया एंड उनका हमेशा कम ही रहा, वो कम कम से ही निकलनी है कंपनी, बल्कि उनके फंडामेंटल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग भी थे। द रीजन बीइंग कि कंपनीज के उन्होंने R&D अच्छी नहीं करी। अगर कंपनीज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी नहीं करी अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसकी R&D अच्छी नहीं है, न्यू प्रोडक्ट्स उसके हीरो प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं मार्केट में, देन आप कुछ भी कर लो, इन्वेस्टर्स, आपका पैसा कब बढ़ता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो कंपनी अच्छा करे एंड तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, तभी प्राइस बढ़ेगा। सिंपल मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड होगी ही नहीं प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। आपको मार्केट का इनसाइट समझना होगा, और अगर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और पी रेशो बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है, एकदम ऊपर शूट कर रहा है 100, 120, 140, बहुत जल्दी नीचे आने वाला है, बिकॉज मार्केट ऑलवेज करेक्ट्स इटसेल्फ एंड दैट इज हाउ पी रेशो वर्क्स। आपको हमेशा ये देखना है पी रेशो देखने के बाद कि जो मार्केट में उस इनसाइट्स और सब कुछ न्यूज़ चल रही है वो कैसे चल रही है, एंड ऑलवेज ट्रस्ट ऑन अच्छी वाली साइट्स। ओके जैसे कल की मैं शायद से स्क्रीनर के बारे में बताया था, स्क्रीनर ऑल्सो टेल्स यू अबाउट समथिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स एंड स्टफ। तो लेट्स गो ऑन टू टेक्निकल। रावी अगर कोई डाउट्स हैं तो भी रख लेना, एंड में सब बताएंगे, अभी कोई डाउट्स है तो अभी रख लो। नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड रावी। राइट सो हियर वी आर टेक्निकल्स। अब भाई कैंडलस्टिक 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 सब आ गए, ट्रेडर्स कैंडलस्टिक वाले फेवरेट, ट्रेडिंग इज फेवरेट। वाह भाई वाह वाह वाह, नाइस नाइस गाइस, गाइस प्लीज ऐसे ऐसी लैंग्वेज यूज मत करो। ओके लेट्स स्टडी, एंड सबका अपना अपना वो होता है, किसी के लिए कुछ फेवरेट हो सकता है, किसी के लिए कुछ फेवरेट हो सकता है। यू कैन ट्रेड एंड स्टिल बी एन इन्वेस्टर। ओके यू कैन ट्रेड एंड स्टिल बी एन इन्वेस्टर। हाँ सो लेट्स गो ऑन टू टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? बहुत सिंपली टेक्निकल एनालिसिस इज लुकिंग एट द चार्ट्स, असरटेनिंग द चार्ट्स एंड ग्राफ्स, और जो कंपनी के बारे में, कंपनी का जो पास्ट ग्राफिकल उनका जो करेक्शंस, एरर्स एंड इवन जो उनके अर्निंग और सपोर्ट लाइन का राइज एंड फॉल रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट और आप लोगों का फेवरेट वर्ड, कैंडलस्टिक की असरटेनमेंट से कंपनी जैसा फ्यूचर में परफॉर्म करने वाली है उसको प्रेडिक्ट करना। नियर फ्यूचर में, आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, कंपनी जैसे नियर फ्यूचर में करने वाली है परफॉर्म, उसको प्रेडिक्ट करना। क्या होती है कैंडलस्टिक? एकदम बेसिस पे एक कैंडलस्टिक समझते हैं कैंडलस्टिक क्या होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कैंडल्स, देयर आर मेनी टाइप ऑफ कैंडल्स, बट मेनली 2 चीज़ों में उनको डाइवर्जन होता है। फर्स्ट वन बिंग द बुलिश, सेकंड वन बिंग द बेरिश कैंडल। एक कैंडल के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द बॉडी एंड द विक। द बॉडी इज द रेड और ग्रीन वाला पार्ट जो यू कैन सी इन द पीपीटी, एंड द विक इज द जो लाइंस उसके ऊपर और नीचे निकल रही है, दैट इज द विक। What does it tell you? If we talk in respect to the bullish candle, the start point of the body जो already mention हो रखा है open price से, that tells you the opening price जिस पे वो stock, particular stock open हुआ था मार्केट में। अच्छा before we dive into all of that, मार्केट कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है, और कब कब ऑफ रहता है एक वीक में, ये बताओ। 9 to 3, 9 to 3:30, 9:35 to 3:30, 3:30, 9:30, 9 9 to 15। ये कौन सा टाइम था? अच्छा 9:15, ओके नाइस वन गाइस। तो यही टाइम रहता है वी कैन शट एग्जैक्टली। भाई मुहूर्त ट्रेडिंग पे आ गया एक बंदा यार, ग्रेट वन मुहूर्त ट्रेडिंग, राइट भाई। तू 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 दिवाली पे कमाएगा मुझे पता है। चलो लेट्स डेल्व ऑन टू टेक्निकल पार्ट नाउ। सो जो आपकी बुलिश कैंडल है उसमें जो ओपनिंग प्राइस होता है दैट टेल्स यू कि मार्केट में कितने बजे, जब वो खुला था मार्केट, तब
जो प्राइस था वो कितने बजे ओपन हुआ. लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बहुत छोटा सा नोट. प्राइजेस मार्केट ओपन करने से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं. प्री ओपनिंग सेशन होता है जिसके टाइम पे प्राइस ऑलरेडी फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं. उसको हम अभी नहीं मान रहे हैं, उसको अगर हम अपने कॉन्टैक्ट से हटाएं तो जो ओपनिंग प्राइस है वो आपको बताता है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो कितने प्राइस पे आज ओपन हुआ. ये स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी बताता है आपको, और फिर बॉडी का जो एंड है दैट टेल्स यू अबाउट द क्लोजिंग प्राइस, टॉकिंग इन रिस्पेक्ट टू द बुलिश कैंडल. अगर हम बात करें बेरिश कैंडल की तो उसको उल्टा कर दो एकदम. जो टॉप है दैट टेल्स यू अबाउट द ओपनिंग प्राइस, द बॉटम टेल्स यू अबाउट द क्लोजिंग प्राइस. मतलब गिरा है स्टॉक, ऊपर नहीं गया. बुलिश में ऊपर जाता है, बेरिश में गिरता है. ओके, देन व्हाट डज द विक टेल्स यू? विक टेल्स यू जो उस पर्टिकुलर स्टॉक का डे हाई और डे लो रहा है. सबने 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो इसके बारे में सुना है? सुना है ना, सुना है ना. बस वो जो डे हाई और डे लो जाता है ना, इट मेजॉरिटी केसेस में जो 52 वीक्स हाई होता है ना आपका, वो स्टॉक का क्लोजिंग पॉइंट नहीं होता कभी, या फिर कभी ओपनिंग पॉइंट नहीं होता. इट्स ऑलवेज द एंड ऑफ द टॉप विक. कि टॉप विक उस पॉइंट पे जाकर खत्म हुई, वो स्टॉक वहां तक ट्रेड हुआ, फिर नीचे 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 आ गया जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा और मार्केट बंद हुआ. अब चलो आपको एक एक चीज़ बताते हैं. नहीं तो ट्रेडिंग तो बहुत लंबा खिंच सकता है, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, बट द थिंग इज मेरे एफआईसी कलीग्स मेरे को मार डालेंगे कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है तू. ओके, सो गोइंग ऑन विद दैट, एक कैंडल के बारे में बताते हैं. सब लोग जो सेकंड वाला है ना जिसमें कैंडल्स ही बनी हुई है, सिर्फ सिर्फ जिसमें कैंडल्स बनी हुई हैं, आप उसको देखो. आपको कोई अलग तरीके की कैंडल दिख रही है? मैं बताता हूँ. जो लेफ्ट से थर्ड कैंडल है बहुत लंबी सी, जिसके पास सिर्फ एक विक है नीचे वाला, ठीक है, वो वाली रेड बेरिश कैंडल, वो बताओ एग्जैक्टली नो अपर. दीज टाइप ऑफ कैंडल्स आर कॉल्ड माराबोजू कैंडल्स. ठीक है, आपको इस पेज में कहीं नहीं दिखेगा, मैं अलग से बता रहा हूँ. अपसाइड डाउन कैंडल, भाई आग नहीं लगानी उसमें, कूल डाउन. ओके, कूल डाउन जेरिश. द थिंग इज ये उनको कहते हैं माराबोजू कैंडल्स. माराबोजू कैंडल्स क्या होती हैं? दे सिग्निफाई ट्रेंड रिवर्सल. ट्रेंड रिवर्सल कैसे? लेट मी गेट माई सेल्फ अगेन. They do not necessarily mean trend reversal. The only fault in technical analysis is you can never be 100% sure. You can never ever be 100% sure. शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा खराब होता है, लॉन्ग टर्म में इट हैज द हैबिट ऑफ करेक्टिंग इटसेल्फ, एंड शॉर्ट टर्म इज ऑलवेज ऑलवेज अनसर्टेन. ठीक है, एग्जैक्टली. थर्ड कैंडल, नाइन्थ कैंडल, बहुत सारी कैंडल्स हैं जो इस वाले ग्राफ में माराबोजू हैं. इवन द जो एकदम बीच में कैंडल है रेड वाली, दैट इज ऑल्सो माराबोजू. ओके, तो टेलिंग अबाउट दोज माराबोजू कैंडल्स टेल्स यू कि आपका जो स्टॉक है उसका वो अब चेंज होने वाला है. कैसे चेंज होने वाला है? सी इट. जो थर्ड कैंडल है उसके पहले यू कैन सी कि पहले स्टॉक का प्राइस फॉल हुआ है, बट अगेन द प्राइस हैज राइजन, एंड उसकी विक बहुत बड़ी है, यानी उसका मार्केट का उसका पर डे का उसका जो डे टू डे हाई और डे टू डे लो गया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गया है उस पर्टिकुलर डे के लिए. अगर हम माने कि वो पर्टिकुलर डे का था जो होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गया है. अगले अगले उस पर आओ. डे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एक्सपैंड हो सके. डे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एक्सपैंड हो सके. फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन से आप भूल जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एकदम 2 मिनट का शांत कर दो इसको, चैट बॉक्स को, और वहां ध्यान दो. इंक्रीज कर रहा है, माराबोजू कैंडल आई, इट फेल, रोज अगेन. अगेन माराबोजू कैंडल आई जो ऊपर जाके छोटी सी वाली है, उसका विक ज्यादा लंबा है. माराबोजू कैंडल आई, इट फेल, एंड देन जो दोबारा राइज किया वो इतना अच्छा राइज नहीं किया क्योंकि मार्केट क्लोज बहुत कम डिफरेंस पे ही हो गया. रोज अगेन, अगेन माराबोजू आई, मार्केट फेल, देन रोज अगेन, एंड बुलिश कैंडल के लिए इन्वर्टेड माराबोजू आई एंड मार्केट फेल. दिस इज हाउ माराबोजू वर्क्स. माराबोजू आपको एक स्ट्रेंथ बताता है ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक. ये स्टॉक की जो भी इनसाइट्स और स्ट्रेंथ चल रही है ना मार्केट के हिसाब से, वो कैसी चल रही है. वंस अगेन प्लीज प्लीज, यार मुझे थका दी तुम लोगों ने. ओके, सुनो सुनो सुनो. अब वंस अगेन कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं डांस नहीं कर रहा यहाँ पे जो वंस अगेन कर रहे हो. हाँ, सो यू कैन सी माराबोजू कैंडल्स 3 से 4 हैं जितनी मुझे दिख रही हैं अभी. 3 से 4 माराबोजू कैंडल्स हैं. द फर्स्ट वन बीइंग द लॉन्गेस्ट वन जो सबसे लेफ्ट में है. मार्केट इज राइजिंग बिफोर इट, आप देखोगे तो विक के ऊपर विक है. सो लाइक एक विक जहां खत्म हुई उसके ऊपर दूसरी विक थी. देन मार्बोजो कैंडल केम, मार्केट गॉन डाउन. ठीक है, जो आपका बुलिश कैंडल आई वो भी नीचे करके आई. ठीक है, उसकी विक भी नीचे रही. देन मार्केट रोज अगेन, बुलिश कैंडल थी, मार्केट रोज अगेन, अगेन अ स्मॉलर माराबोजू बट दिस टाइम विद अ मच बिगर विक केम इनटू प्ले, एंड मार्केट दोबारा कोलैप्स हुआ. देन ट्रेंड रिवर्सल वंस अगेन, एक और छोटी सी माराबोजू आई जो उसके तुरंत नीचे, एंड उसने तुरंत उसको रिवर्स कर दिया एंड मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया. देन वंस अगेन एक माराबोजू आई एंड मार्केट फेल अगेन. जो बीच वाली माराबोजू, मार्केट फेल अगेन. देन मार्केट थोड़ा सा राइज किया एंड देन इट केप्ट ऑन फॉलिंग, एंड वहां पे कोई माराबोजू नहीं है बट स्टिल इट केप्ट ऑन फॉलिंग, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ट्रेंड्स कैन बी रिवर्स्ड even without Marubozu candles coming into play, and trends can still not reverse even when Marubozu candles are in play.
and that is what tells you about the uncertainty of the technical analysis. Yes, they are highly uncertain, the market is uncertain. That's why I was saying, even when you're trading, trade in stocks which have good fundamentally analyze the particular stocks you're wanting to trade in, so that जब आप उस पर ट्रेड कर रहे होगे ना, तभी आपको पता होगा कि इवन इफ द मार्केट फॉल्स ना, आप भागोगे नहीं डर के। आपको पता होगा कि ये स्टॉक है फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रांग है, कभी ना कभी, नॉट टुडे, नॉट द नेक्स्ट वीक, मे बी इन द नेक्स्ट मंथ और मे बी 6 मंथ लेटर ये कवर कर लेगा ना, ऊपर ही जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अभी किसी को क्वेश्चंस हैं तो हम एकदम एंड में लेंगे। नो, माराबोजू कैंडल इज बेरिश एंड बुलिश बोथ। किसी को क्वेश्चंस हैं तो एंड में लेंगे। सो या रावी, यू कैन टेक द स्टेज नाउ। थैंक यू गाइस। All right. Thank you so much, Kashish and Saksham, for that very enlightening session. Now we will move to the most fun part of our uh, program, that's the Menti quiz. The rules for the quiz will remain the same. And now I would like the Menti quiz host to take over. अच्छा चलो, अब थ्योरी तो कर ली एंड वो तो चलती रहेगी 2 दिन, बट डोंट यू गाइस फील कि भाई ये पढ़ाए जा रहे हैं बट कोई तुम्हारी न्यूली एक्वायर्ड फाइनेंशियल नॉलेज को टेस्ट ही नहीं कर रहा? FIC team already looked ahead for this. So let's start with the extraordinary and interestingly interactive quiz we have prepared for you guys. Be quick to join, guys. All right, so the link for Menti quiz has been posted in the comments. And while you join, I'll tell you about the rules. Rules same ही है कल वाले, but once again. Okay, so there will be a link which is shared in the comments, messages, right? Okay. Now you can join the Menti quiz using that link or the QR code which is presented on the screen. After that, you'll be directed towards a waiting room. As soon as you enter the waiting room, as soon as the quiz starts, there'd be questions. So you'd have to choose the most appropriate answer which you think is suitable for the question. After that, the person who answers the question first would be awarded with more points and it would be reflected on the leaderboard. Now, just in hurry, make sure you do not get the question wrong, because if you do, you'll be awarded with 0 points. So even if your answer is a bit late, make sure it is correct. Thanks, Sia, for letting us all know about the rules. Guys, we're gonna start soon, so buckle up. Those who haven't joined, kindly join me quickly. I would like to repeat that whoever hasn't joined the link, the Menti quiz, kindly join. The link is in the chat. Till the time others join, can we get Menti time in the chat real quick? Everyone, please. I need a spam. Nobody? Nice. Here it comes. Here it comes. I think Ada, you guys can start, I guess. Yeah, okay. I'll start with the quiz. Okay, so we have got questions and you have got answers. Remember, it's not always about winning. It's about having a blast. May the best quizzer win.
So, as the great Kirodimal alumnus Shri Amitabh Bachchan says, देवियों and सज्जनों, शुरू करते हैं आज का खेला, तालियां. Okay, so the first question of the day 2 for Young Learners Finance Fellowship is on your screen. Who manages the investments in the mutual fund? The options are the government, fund manager or portfolio manager, the shareholders, or the stock exchange. A little reminder that be quick. Oh, okay. Everyone has voted. Nice. All right, so our answer to this question was fund manager or portfolio manager. And as we can see, all of you have answered correctly. Well, this was a fairly easy question, wasn't it? Let's see who was the fastest then. And we have Jubin Singh on the top of the leaderboard, followed by Jerish and Nandlal. On to the next question. The second question of this quiz is right here. In the context of futures contracts, what is the term margin referring to? The cost of executing a futures trade, the profit earned when the contract expires, the fees charged by the futures exchange, or the collateral required to enter into a futures contract. Guys, be quick. The fastest finger wins. Last 3 seconds to go. All right, so as I see, the time is up and the answers are in. Only 11 of you got the answer right. Well, guys, this was covered in the topic today, and please make sure to pay attention. On to the leaderboard. Well, Aditya Singh has taken the lead with the fastest answer, and I can see Jubin has shifted to the 5th place. Well, let's see who overtakes the other. Moving on to the third question. Which of the following assets is often considered a safe haven during times of stock market volatility? The options are gold, cryptocurrencies, high yield bonds, and tech stocks. Time's ticking away, guys. Be fast. And the votes are in. Well, everyone has voted, and the answer to this question was quite obvious. Well, Kashish covered the topic in the quiz, in the session itself, and I don't know why 6 of you have gotten it wrong. Well, on to the leaderboard now. Aditya has maintained his lead and he's still the fastest. Well, people, as I told you in the very beginning, make sure even if your answer is a bit late, it is right. So, on to the next question now. We're almost halfway through the quiz. The fourth question is on your screen. Who is famous as Oracle of Omaha for consistently recommending low-cost index funds to investors as an investment strategy? Warren Buffett, George Soros, Ray Dalio, or Carl Icahn? Last 3 seconds to go. Everyone has voted. Nice. Well, everyone has voted, and as I see, most of you have a very excellent general knowledge. So, the answer to this question was Warren Buffett. On to the leaderboard. The fastest one to answer this question was Jubin, and Sanya has replaced Aditya from the first place. Well, let's see. Moving on to the fifth question, the halfway mark. In 2020, which commodity had a historic price crash due to falling global demand, oversupply, and an oil price war between Saudi Arabia and Russia? The options are gold, wheat, crude oil, or coffee. Be quick, guys. Last 5 seconds. Everyone has voted. Nice. All right, so all the answers are in. And for those who have gotten it wrong, well, the answer was in the question itself. Oil price in Saudi Arabia. It was kind of obvious, wasn't it?
Now on to the leaderboard. And Aditya Singh was the fastest, but on the leaderboard, only one position, including Kanishka and Vyom, has changed. Sanya is still maintaining her lead. Time to flex those brain muscles, guys. The questions are just gonna get tougher from here. Well, on to question number 6. In India, which regulatory body oversees the mutual funds and ensures investor protection in context of SIPs? The first option is Reserve Bank of India. The second option is Ministry of Finance. The third option is, all right, so everyone has already voted. The correct answer for this question was Securities and Exchange Board of India, also known as SEBI. Moving on to the leaderboard. Bhavika has replaced Sanya as the first position, and Sanya slipped down to the second position, while Harshita was the fastest finger. Well, Bhavika, be careful. People are coming for your crown now. The next question, how does a SIP differ from a lump sum investment? And the options are on your screen. Hurry up, guys. Time is running out. Last 5 seconds, and everyone has voted. The answer for this question, oh my god, 30 of you got it correct. Okay. SIPs involve investing a fixed amount at regular intervals. Guys, this was covered in today's session itself. So pay a little more attention in the next one. Moving on to the leaderboard. Let's see who takes the first spot. Bhavika strengthens her lead, and while Sanya remains at second and Jubin third. Well done, guys. 8th question, guys. We're nearing the end. Make sure you give the fastest answers which are correct. How can investors gain exposure to commodities in their portfolio? By purchasing physical goods like gold bars, by investing in government bonds, by directly owning commodity producing companies, or through commodity mutual funds or ETFs. Time is running out, guys, and everyone has voted. The correct answer for this one was through commodity mutual funds or ETFs, and 19 of you got it correct. So kudos to whoever got it correct. Moving on to the leaderboard, let's see who takes the first spot. Jubin was the fastest and hence takes the lead. Aditya comes in second, while Sanya and Bhavika slips down to the last 2 spots. Well, this is the second last question of the quiz. Buckle up, guys. What is a common strategy investors use to mitigate risk during uncertain market conditions? Options are day trading, borrowing money to invest more, diversifying their investment portfolio, and the last one is short selling. And the votes are in. The correct answer is diversifying their investment portfolio. You don't put all your eggs in one basket, guys. Come on, the Warren Buffett saying. Well, since most of you has gotten this answer right, it was a fairly easy question. And thank you, Jobin, Mr. Fastest, for kind of stating the obvious. On to the last question now. The final question of the quiz is on your screen. Name the world's largest stock exchange by market capitalization as of 2023. And your options are New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, or Tokyo Stock Exchange. Be quick with the answers, guys, because this will be the deciding factor of who takes the crown. Well, everyone has voted, and the answer to this question is New York Stock Exchange. Well, it was kind of tricky, wasn't it? Between London Stock Exchange and New York Stock Exchange. But kudos to all of those who got it correct. Now, the deciding factor, who will get the brownie points? And the winner is Drum rolls. Jobin.
Congratulations, Jubin. Congratulations, Jabin. Congratulations, you played really well and stayed pretty dominant on the charts today. And kudos to you for that. All right, all of the people who maintain their lead on the leaderboard, as well as all those people who got all the answers right. Thank you for taking up something from our session. We'll be back tomorrow with more questions. See you soon. All right. Congratulations once again to the winner. And with that, we conclude today's session. I hope that we ended today leaving you more intrigued, excited, and with abundant learnings. और I hope आप excellence और कामयाबी के थोड़े और close आए. Thank you everyone for joining. And do remember कि आज की और जो pending assignment है वो complete कर दो. And today's shoutouts they go to Jerish, Vansh, and Arshia. See you all tomorrow for another fun yet informative session. And now we are open for doubts. You can ask the doubts in the chat box if anyone wants to.